اس خوبصورت آیت کے بحاف پر جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں اترنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے اونچی آواز میں پڑھ دیں۔ جی پھر سے پڑھیں۔ اردو زبان میں خدا آپ کے فریم کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے فریم کو مضبوط کرنے والا ہے۔ سادہ زبان میں وہ مجھے اور آپ کو پکا کرنے والا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیں مضبوط کرے، وہ ہمیں پکا کرے تو ہم پکے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس مضمون کو میں نے آج کی اس خوبصورت آیت کے بحاف پر لیا ہے۔ Lord will strengthen your frame۔ یہ خدا کے کلام کی آواز ہے۔ خدا میرے اور آپ کے فریم کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے۔ آئیے ایک دعا کے ساتھ آج کے اس مضمون کی طرف چلیں، اور یہ دعا میں نے تسالونیکے کی کلیسیا کے نام لکھے گئے پہلے نامے اور اس کے 5ویں باب میں سے آپ کے لیے دی ہے۔ خدا کا خادم ہونے کے ناطے میری آپ کے لیے دعا یہ ہے کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے وہ آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے۔ میری دعا اس کرسمس سیزن میں آپ کے لیے یہ ہے کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے وہ آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہے۔ بڑے پاورفل لفظ ہیں بھائی، اس دعا میں بڑے پاورفل لفظ استعمال کیے گئے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو تسالونیکے کے مسیحیوں کے لیے استعمال کیے گئے، اور میں نے خدا کا خادم ہونے کے ناطے آج شام ان الفاظ کو آپ کے لیے چنا ہے۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے وہ آپ کو پاک کرے، اس سیزن میں آپ کی روح، آپ کی جان اور آپ کے بدن کو پورے طور پر نہ صرف محفوظ رکھے بلکہ بے عیب بھی رکھے۔ آئیے اس دعا کو لے کر خدا کے کلام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بائبل کا خدا سدا میری اور آپ کی رہنمائی کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ خشک سالی میں وہ ہم میں سے ایک ایک کو سیر کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ ہم عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہیں، بائبل کا خدا ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، اور پھر وہ ہمیں سیراب باغ کی مانند بنائے رکھتا ہے، اس چشمے کی مانند جس کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جو یسایہ کی کتاب کے 58ویں باب میں موجود ہیں۔ خدا یقیناً رہنمائی کرنے والا، خشک سالی میں سیر کرنے والا ہے، ہڈیوں کو قوت بخشنے والا ہے،
ہمیں سیراب باغ کی مانند بنانے والا ہے، اور پھر اس چشمے کی مانند جس کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا۔ اب اگر میری اور آپ کی زندگی میں ڈرائینس ہے، خشک سالی ہے، اگر میں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سیراب باغ کی مانند نہیں ہیں، اگر میں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس چشمے کی مانند نہیں ہیں جس کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ گڑبڑ کہاں پر ہے، دیکھنا ہوگا کہ ایرر کہاں پر ہے، وہ کیا ہے جسے سال کے ان اختتامی لمحوں میں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیراب باغ کی مانند ہوں، اس چشمے کی مانند ہو جس کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو کہاں لگائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پانی کی ندیوں کے پاس لگائے گئے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ ایسے کسی درخت کا پتا نہ تو کبھی مرجھاتا ہے نہ کبھی بے پھل رہتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ بار بار ہوتا ہے۔ ہم بار بار ہوتے ہیں، ہم پھلدار ہوتے ہیں، ہمارا پھل اسی وقت قائم رہتا ہے جب ہم پانی کی ندیوں کے پاس خود کو لگائے رکھتے ہیں۔ آئیے ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ خدا میرے اور آپ کے فریم کے طور پر، مہربانی سے نوٹ کریں گے، یہ بالکل نیا خیال ہے۔ خدمت کے 37 سالوں میں یہ خیال میرے لیے بھی بالکل نیا ہے۔ خدا میرے اور آپ کے اس فریم پر ہمیشہ اپنی نظر بنائے رکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کی کوئی بھی چیز فریم کے بغیر کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر یہ فریم نہ ہو تو یہ بلڈنگ کیسی ہو؟ جن گاڑیوں پر آپ سفر کر کے آئے ہیں، اگر اکرم فریم نہ ہو تو گڈی کا بھی کڑی گڈی جو بیٹھ آئے فریم ہی نہیں۔ جن گھروں میں آپ رہتے ہیں، جن بنگلوز میں آپ رہتے ہیں، اگر فریم ہی نہیں تو پھر گھر اور بنگلہ کیسا؟ فریم جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور چونکہ مجھے اور آپ کو خدا نے ایک فریم دیا ہے، نوٹ کرے بھائی، مجھے اور آپ کو خدا نے ایک فریم میں رکھا ہے، اور اس فریم میں رکھے ہوئے اس نے ہمیں 3 بنیادی چیزیں دی ہیں۔ سادہ زبان میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کا ہوسٹ ہے۔ آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کا ہوسٹ ہے، اور اگر اسے کرنتھیوں کے خط میں لے جائیں تو یہ وہ برتن ہے جس برتن میں خدا نے قیمتی خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ بائبل میں یہی لفظ ہے۔ مٹی کے ان برتنوں میں خدا نے قیمتی چیزیں رکھی، اور وہ جو 3 قیمتی چیزیں اس نے رکھی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے جسم، دوسری چیز ہے جان، اور تیسری چیز ہے روح۔ اب بائبل کا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری یہ تینوں کی تینوں چیزیں محفوظ بھی ہوں اور بے عیب بھی ہوں۔ دھیان کرے ہوئے، یہ بالکل ایک نیا خیال میں آپ کو دے رہا ہوں، شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی غور نہ کیا۔ بائبل کا خدا یہ چاہتا ہے کہ اس فریم میں رکھی ہوئی ان تینوں چیزوں کی ہم قدر کریں، ان کو محفوظ بنائیں،
और इन पर किसी किस्म का कोई दाग लगने ना दे, किसी किस्म का कोई दाग हम लगने ना दें। मैं गौर कर रहा था कि जब हम इस फ्रेम में रखी गई 3 चीजों पर गौर करते हैं तो इनमें सुप्रीम चीज है रूह। अब जरा नोट करें, खुदा चूंकि रूह है इसलिए वो हमारे जिस्म के साथ नहीं बल्कि हमारी रूह के साथ गुफ्तगू करता है। खुदा रूह है। जिस्म में रखी गई 3 चीजों में से सबसे सुप्रीम चीज रूह है। चूंकि खुदा रूह है इसलिए रूह का रूह के साथ कनेक्शन है। रूह का रूह के साथ कनेक्शन है। और अगर आप इसे उठाकर इमाम की किताब में ले जाएं तो बात और खुल जाती है। इसीलिए रूह दिया गया ताकि हम रूह से भरे रहें और रूह विच हम गाते भी रहें, बजाते भी रहें, हंसते भी रहें और रोते भी रहें। ये बड़ा जरूरी है कि रूह का रूह के साथ कनेक्शन हो। और फिर से कहूंगा, यहां आने के बाद जब हम जिस्म के तौर पर अपने सारे कनेक्शंस जो हैं उनको खत्म कर देते हैं तो फिर यहां सिर्फ कनेक्शन होता है रूह का रूह के साथ। और हम अपनी रूहानी आंखों से सिर्फ खुदा को जो रूह है वो देख रहे होते हैं, क्योंकि हम जिस्मानी आंखों से खुदा को देख नहीं सकते। पौलुस ने देखने की जसारत की और आप जानते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ। वो अंधा हो गया और फिर उसकी आंखों के छिलके गिराने पड़े, उसे बेनाई देनी पड़ी। चूंकि हमारा ताल्लुक रूह का रूह के साथ है इसलिए बड़ा जरूरी है कि इस जिस्म में होते हुए हम यहां ना हो बल्कि हमेशा रूह के तौर पर हों। और जब हम रूह के तौर पर यहां होते हैं तो फिर हमें कतई पता नहीं होता हमारे साइड पर कौन बैठा हुआ है, हमारे फ्रंट पर कौन बैठा हुआ है, हमारे पीछे कौन बैठा हुआ है, किसने क्या पहना हुआ है, कौन क्या कर रहा है। फिर हम चीजों से बिल्कुल बेनियाज होते हैं, बिल्कुल बेनियाज। जरा अपने फ्रेम पर, स्केलेटन पर जरा गौर तो करें। 200 से ज्यादा हड्डियां हैं जिन पर मैं और आप खड़े हुए हैं। 200 से ज्यादा हड्डियां हमारा स्केलेटन जो है। अच्छा, अगर ये फ्रेम ही ना हो तो फिर बात कैसे बनेगी भाई। तो बाइबल के खुदा ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस फ्रेम को बनाया है और इस फ्रेम में बड़ी खूबसूरत चीजें रखी हैं, जान भी और रूह भी। इसलिए जब आप जान और रूह को होस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ख्याल रखना होगा, फिर से याद दिला दूं, आपने इसे महफूज भी रखना है और आपने इसे बेदाग भी रखना है। एक और बात याद रखिए जो मैंने कलाम की तैयारी के हवाले से सीखी। नो डाउट कि बाइबल का खुदा ये चाहता है कि हम इस जिस्म के तौर पर भी ग्रो करें। वो चाहता है कि हम कद्दो कामत में बढ़े, क्योंकि बाइबल का खुदा हमें बौने किस्म के मसीही के तौर पर नहीं देखना चाहता। और इसमें कोई शक नहीं, हम जितने पेरेंट्स यहां बैठे हैं, अगर बच्चा बढ़ता नहीं है तो फिर हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना होता है, उससे पूछना होता है कि इसके ग्रोथ की न होने की वजह क्या है, ये क्यों ग्रो नहीं करता।
तरक्की क्यों नहीं हो रही? और फिर डॉक्टर कुछ चीज़ें सजेस्ट करता है और फिर हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम अपने किसी बच्चे को बौने के तौर पर देखना नहीं चाहते। बाइबल का खुदा भी ये चाहता है कि उसके लोग जिस्मानी तौर पर भी और खास तौर पर फिर मैंने उसी ख्याल को पकड़ रखा है, हम रूह के तौर पर कभी बौने ना हो। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि मसीही हलकों में पादरी साहब बौनों की कमी नहीं, उन पौधों की भी कमी नहीं जिन्हें आर्टिफिशियल ट्रीज कहा जाता है, जिन्होंने सिर्फ शौकिया सा घर लाया, ना पानी देने ना खाद पाने, वो 10 साल पहलों भी ओडे दे ओडे सन ते अज भी ओडे दे ओडे, बड़ा ही नहीं है। कुछ मसीही जो हैं वो आर्टिफिशियल पौधों की तरह होते हैं। कुछ मसीही जो हैं वो बौनेपन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, वो ग्रो नहीं कर रहे, वो तरक्की नहीं कर रहे, और वो शायद इस बात का एहसास भी नहीं कर रहे कि हमारी तरक्की के रुकने का कारण क्या है, हम क्यों नहीं बढ़ रहे। चेक करना होगा, क्योंकि बाइबल का खुदा ये चाहता है कि हम अपने स्पिरिचुअल फ्रेम में बढ़े और तरक्की करें। अब बाइबल का खुदा हमें बदन के तौर पर तो देखना चाहता ही है कि हम बढ़े, हम फूले और फले, लेकिन वो रूह के तौर पर दरअसल हमें बढ़ता हुआ देखना चाहता है, रूह के तौर पर। और जब हम रूह के तौर पर बढ़ते हैं, रूह के फलों के हवाले से मैं और आप बढ़ते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर हम न सिर्फ अपने लिए, न सिर्फ अपने खानदान के लिए, बल्कि अपनी कलीसिया और कम्युनिटी के लिए भी बरकत का बायस बनते हैं। तो आज के लिए एक खूबसूरत सा ख्याल, एक सवाल मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। क्या मुझे और आपको एहसास है कि मैं और आप रूह के किन फलों से भरे हुए हैं? रूह की वो कौन कौन सी नेमतें हैं जो कादिर खुदा ने आपको बख्शी हैं, लेकिन शायद आपने गड्ढा खोद कर उन्हें कहीं डाल दिया है और आपने उन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया। रूह की वो कौन सी नेमतें हैं, वो कौन से तोड़े हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको तोहफतन दी गई हैं, लेकिन आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया। तिमोथियस को क्या कहा गया? नौजवान तिमोथियस को कहा गया कि जो नेमत तुझे बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त मिली थी उसे चमका दे। बाइबल मुकद्दस में यही लफ्ज है। अरे जो नेमत तेरे पास थी और बुजुर्गों ने हाथ रखकर तुझे ब्लेस किया, अब ये तेरा फर्ज है कि तू उस नेमत को चमका दे। अब वहां यूनानी जुबान का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उससे मुराद ये है कि वो एक छोटे से शोले की सूरत में थी, तू उसे पहाड़ बना दे। वो एक छोटा सा शोला था, स्पार्क था, तू उसे पहाड़ बना दे। और मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या रूह के तौर पर उन तोड़ों को लेकर, उन एबिलिटीज को लेकर, उन क्वालिटीज को लेकर जो कादिर खुदा ने आपको बख्शी हैं, आपने पहाड़ बनाने वाला काम किया है या कि नहीं? कि ओ ये माड़ा या स्पार्क है। और मैं पूछता हूं कि ये माड़ा या स्पार्क जो है ये कब तक चलेगा? ये तो किसी वक्त भी बुझ जाएगा। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम इस बात को महसूस करें कि हमने हमेशा अपने लिए तेल का इंतजाम करना, हमने सुस्त कमारी नहीं बनना। और जब कमारियों की तमसील को हम पढ़ते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, खुदा के बड़े बड़े खादिम तेल को खुदाए पाक रूह से तशबीह देते हैं और वो कहते हैं कि
इस स्केलेटन में, इस फ्रेम में अगर खुदा के पाक रूह का असर नहीं है, उस तेल का असर नहीं है, तो फिर हमारा शोला जो है वो कभी भी पहाड़ नहीं बनेगा। ये उसी सूरत में बनेगा जब हम पाक रूह के तसल्लुत में होंगे, और फिर पाक रूह के जब हम तसल्लुत में होंगे तो फिर रूह के साथ कनेक्शन होगा, और फिर जब रूह के साथ कनेक्शन होगा तो इस तरक्की और इस ग्रोथ को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। लेकिन बड़ा जरूरी है कि ऐसा हो। आज का जो बयान आपकी खिदमत में रखा गया, बनी आसिफ ने इस ज़बूर को लिखा, बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है। वो कह रहा है कि गो मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ाइल हो जाएं, गो मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ाइल हो जाएं, तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बखरा है। मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ाइल हो जाए। अच्छा, सच्ची बात यह है कि हम इस जिस्म में होते हुए सिर्फ एक ही चीज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, और वो चीज है हमारा दिल। जबकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि भाई बच्चों, ये तो हीलेबाज है, लाइलाज है, आज तक किसी की समझ में ये नहीं आया। जब किसी की समझ में नहीं आया तो भाई आपकी समझ में कैसे आएगा? आपकी समझ के नाखून ले लें, दिल की मानना छोड़ दें। लेकिन क्या करें? हमें इश्तिहारात के तौर पर यह दर्ज दिया जाता है कि दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। हमें हमेशा बेइत्मीनानी सिखाई जाती है, हमें हमेशा इश्तिहारात के जरिए से सेटिस्फेक्शन की कमी में मुब्तला किया जाता है। मोर मोर और मोर के चक्कर में, और मैं दलेरी के साथ कहूंगा, मोर के चक्कर में सिर्फ वो पड़ते हैं जो नाशुक्रे होते हैं। नाशुक्रे, जो शुक्रगुजार होते हैं, उनके पास जो कुछ होता है वो पालूस की तरह उसी पर, लफ्ज क्या है, राजी रहते हैं। वो मुकद्दस पालूस की तरह उसी पर राजी रहते हैं, और हमेशा उठते बैठते कहते हैं हमने बढ़ना भी सीख लिया है और हमने घटना भी सीख लिया है, और हमने ये सीख लिया है कि जिस हाल में हो उसी पर राजी। अब हमें करना क्या है? मेरे लिए इस नए साल के दौरान, शारून आपके लिए अज़वाजी ज़िंदगी में इस नए साल के दौरान, जितनों को खुदा ने आज के दिन में आगे बढ़ाया है, उन्हें खुदावंद से ये दुआ करनी होगी कि खुदावंद को इस फ्रेम में होते हुए हमारे लिए चंद एक काम कर, क्योंकि ये काम ना तो रूह से ना ताकत से, ये काम सिर्फ हम जिस्म से और ताकत से नहीं कर सकते, सिर्फ तेरी रूह से मुमकिन है। काम क्या है? तू हमारे किरदार को स्ट्रॉन्ग कर। किरदार स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर महफूज भी होगा और बेऐब भी होगा, ये याद रखिए। दूसरी बात, तू हमारे ईमान को मजबूत कर, तू हमारी उम्मीद को मजबूत कर, तू हमारे जुनून को मजबूत कर, तू हमारी खुशी को मजबूत कर, तू हमारे सब्र को मजबूत कर, तू हमारी बुद्धि को मजबूत कर। और खुदावंद ये सब कुछ सिर्फ तू ही कर सकता है। इस फ्रेम में रहते हुए हमें ये सब कुछ सिर्फ तू ही दे सकता है, क्योंकि तू ही हमारा जोर, हमारा बखरा और हमारा सब कुछ है। तू ही हमारा सब कुछ है। एक आखिरी बात कहकर खत्म करूंगा। फिर से आपको याद दिला दूं कि बाइबल का खुदा ये चाहता है कि हम बदन के तौर पर तरक्की करें, लेकिन दरअसल वो चाहता है कि हम रूह के तौर पर मजबूत हों, तरक्की करें। और अगर हमने बदन के तौर पर तरक्की की है और रूह के तौर पर हम कमजोर रहे हैं, तो फिर हम डेंजर जोन में हैं। क्योंकि नोट कर लें,
जब हिसाब किताब लिया जाएगा, जब जवाब तलबी की हम बात करते हैं, तो जवाब तलबी जिस्मों से नहीं बल्कि रूह से होगी। तो फिर आइए आज अपने पाँव पर खड़े होकर एक प्रैक्टिकल करके यहाँ से वापस जाए प्लीज। आज पुराने गीतों का सिलसिला हमने चलाया। अच्छा, ये वो गीत हैं जो इतने हमने गाए कि मैं आपको क्या बताऊं। सईदाबाद पैरिश में जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हनी है, कुछ और बच्चे हैं, हम एक रात में कम से कम 40 के करीब गीत गाया करते। ओवरनाइट सर्विस थी ना भाई, ओवरनाइट सर्विस थी, कुछ 40 के करीब गीत गाते थे। बेड़ा नवा गीत आया, बस हम पकड़ गए, छोड़ा नहीं बस, ये ट्रेंड था। अब फिर राज के आने से हमें ये बरकत मिली है। मैं कल भी इस बेटे को कह रहा था, क्योंकि जो लोग बजाना नहीं जानते फिर मैं उनको नए गीत क्या दूँ। अब मैं ज़रा दिलेरी के साथ भेज देता हूँ कि बेटा आप सुन लें, हमने इन गीतों को गा दिया। दिल करता है। एक बड़ा खूबसूरत सा गीत था शकील अर्नस्ट भाई का, तू बढ़ता जा। लफ्ज क्या थे? तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा, मैं कम होता। फिर से सुने, तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा, मैं कम होता। तो फिर आइए आज अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने हाथों को उठा लें और एक दुआ मैंने आपके लिए की, अब आप अपने लिए एक दुआ करें और ये दुआ करते हुए यहाँ से जाएं और कहें, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। रिदम में कर लेंगे ज़रा, हाँ, बगैर साजों के, लेकिन इसको हम गाएंगे, ठीक है? 2 बार गाएंगे और उसके बाद दुआए रवानी और बरकत के कलमे के साथ हम रुखसत होंगे।